Yes, my dear students, you are welcome to the next lecture of combustion and flame. In this video, we're going to find out whether a fuel is good, bad, or it is an average fuel. For this, we have to understand the calorific value of a fuel. So our today topic is the calorific value of fuel, or you can say the fuel efficiency. So before going to start the definition of calorific value, I want to share something with you that whenever a combustible substance burn, it always gives some amount of heat. Some amount of heat always liberated when a combustible substance burns. क्या वो amount of heat always same होगी? Amount of heat liberated always remains same in all combustible substances? No, it is different in different type of combustible substances. The amount of heat liberated is different in different combustible substances. So now it's a time to know the definition of calorific value. The definition of calorific value is, it is the amount of heat liberated when 1 kg of combustible substance burned with sufficient supply of oxygen. And that value, the amount of heat, that value determines the fuel is good or bad. If the value is more, fuel will be good. And if the value of calorific, or you can say if the value of amount of heat will small, then fuel will be a bad fuel, or you can say it is an average fuel. ठीक है बच्चों? So it's a time to know the SI unit of calorific value. Calorific value की SI unit, it is kilojoule per kg, because the unit of energy is joule. Energy की यूनिट क्या होती है? Joule. So we can write joule per kg, or if the amount is more, we can write kilojoule per kg. So ये दोनों आपकी SI unit है calorific value की. So with the help of calorific value, we can find out our fuel is good or bad. You can see, I made a table for you. In the left hand side, you can see a column of fuel, and in the right hand side, you can see the column of calorific value. तो अभी मुझे कैलोरिफिक वैल्यू की SI यूनिट पता चल गई है, तो मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं, किलोजूल पर केजी. I have write down 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuel in the left hand side of this table, and in the right hand side I mentioned their calorific value, their respective calorific value mentioned in the right hand side of this table. So let's start with the first fuel, that is cow dung cake. It has the lowest calorific value among these fuels. It is only 7000 kilojoule per kg. Means whenever we burn 1 kg of cow dung cake, we get only 7000 kilojoule energy. काफी कम. Next, wood. From the wood we get 17,000 to 22,000 kilojoule of energy when 1 kg of wood burn. It is more as compared to cow dung cake, but it is very low as compared to LPG or kerosene, or you can say petrol. Number 3, coal. काफी common fuel है, common domestic fuel भी है, as well as it is an industrial fuel. When we burn 1 kg of coal, we get 25,000 to 33,000 kilojoule of energy. It is depend on the types of coal, कि whether it is anthracite or leguminous. ठीक है ना? Next है lignite, sorry. Next है kerosene. Kerosene is also a common and good fuel. ये डोमेस्टिक फ्यूल भी है और जेट इंजन्स में भी यूज होता है, जेट फाइटर्स में भी यूज होता है. The amount of heat liberated when 1 liter of kerosene burn, or you can say 1 kg of kerosene burn, you get 45,000 kilojoule of energy. It is much more as compared to cow dung cake. This value is also same for the petrol as well as for diesel. Next, LPG.
When we burn 1 liter of LPG, we get 50,000 kilojoule of energy. काफी अच्छा है. And in the last, we have the excellent fuel in our earth, that is hydrogen gas. When we burn 1 kg of hydrogen gas, we get 1,50,000 kilojoule of energy. That's why this hydrogen gas is used in the rockets. नासा और इसरो जो रॉकेट्स यूज करती हैं उसमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है, और ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल भी है. हमारे फ्यूचर में ये अल्टरनेट हो सकता है गुड फ्यूल में. इट इज अ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल आल्सो. कोई रिमेन्स नहीं रहता, अगर जलता है तो कोई एशेज नहीं रहता लास्ट में, रिमेन्स नहीं बचते. गुड फ्यूल, क्लीन फ्यूल, हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम द कैलोरीफिक वैल्यू. नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, कि एक गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. लेट्स स्टार्ट. क्या फीचर्स होने चाहिए एक गुड फ्यूल के? कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स, क्या, और वो भी किसके? गुड फ्यूल के. ठीक है ना, गुड फ्यूल. अगर मैं किसी गुड स्टूडेंट्स के फीचर पूछता हूं तो क्या फीचर्स होंगे उसके? क्या ही और शी शुड बी पंक्चुअल रिगार्डिंग हिज स्टडीज और हर स्टडीज, रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करता हो, दोज हु स्कोर गुड मार्क्स. ठीक है ना, इन सब ऐसे कुछ फीचर्स किसी गुड फ्यूल के भी हो सकते हैं. अगर हम बात कर रहे हैं गुड फ्यूल, तो मतलब गुड फ्यूल क्या? फ्यूल, वी नो फ्यूल, व्हाट इज फ्यूल. एक गुड फ्यूल क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन फ्यूल और गुड फ्यूल पता होना चाहिए. पहले तो उसके लिए गुड फ्यूल के बारे में स्टडी करते हैं कि एक गुड फ्यूल क्या है. नंबर 1, लो इग्निशन टेम्परेचर. फ्यूल तो बैड भी होता है, लेकिन उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी आपको ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी होगी तब वो जाके चलेगा. अगर इग्निशन टेम्परेचर कम है तो जल्दी बर्न हो जाता है. उस केस में आपके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते उस केस में. तो ऐसे फ्यूल को हम, जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, उसको हम गुड फ्यूल बोलते हैं. और इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाए, लेकिन कम होना चाहिए. ठीक है ना. नंबर 2, हाई कैलोरीफिक वैल्यू. वो तो हमने अभी स्टडी किया ही है कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेशन इज हाई, देन द फ्यूल इज आल्सो गुड. ठीक है ना. अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, जैसे कि आपकी हाइड्रोजन गैस में 1,50,000, तो बहुत ही अच्छा फ्यूल है, गुड फ्यूल में आता है. ठीक है ना. हाई कैलोरीफिक वैल्यू मींस द लिबरेशन ऑफ हीट विल आल्सो मोर. नंबर 3, मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन. जो रेट ऑफ कंबशन है वो एक्सप्लोसिव नहीं होना चाहिए कि आप उसको जलाओ और वो बर्स्ट हो जाए, साउंड क्रिएट करे जस्ट लाइक क्रैकर्स. मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन होना चाहिए, ना तो एक्सप्लोजन हो उसके अंदर और इतना स्लो भी नहीं हो कि आपको काफी वेट करना पड़े हीट मिलने के लिए. मॉडरेट रेट होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए. नंबर 4, सेफ टू स्टोर एंड टू सेफ टू हैंडल. मतलब जब आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हो या जब उसको स्टोर करते हो तो आपके लिए ट्रबल क्रिएट ना हो, आपके लिए आप वो एक सेफ व्यू से आप क्या उसको स्टोर कर सको और उसको हैंडल कर सको. अब मैं बात करता हूं सोडियम की. सोडियम मेटल है, उसको हम सेफली हैंडल नहीं कर सकते, घर में नहीं रह सकते, क्योंकि जैसे ही वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है उसमें बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक गुड फ्यूल में नहीं आएगा. ठीक है ना. वो बर्न होता है, एक्सप्लोसिव भी है, तो सारे फीचर्स उसके पास नहीं है जो एक गुड फ्यूल के पास होने चाहिए. नेक्स्ट है डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, कि अगर हम उसको बर्न करें तो एयर पॉल्यूशन भी ना हो. जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो एयर पॉल्यूशन नहीं करता है, पेट्रोल भी नहीं करता है, बट कुछ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेंट्स निकल आते हैं जो समटाइम इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है ना. बट कोल की बात करें तो कोल क्रिएट करता है, क्योंकि लास्ट में आपको क्या मिलता है? ऐश मिलती है, और CO2 गैस में निकलती है बहुत ज्यादा, फॉग क्रिएट होती है, स्मोक क्रिएट होती है. नेक्स्ट है लीव बिहाइंड नो रेसिड्यू. ऐसा फ्यूल होना चाहिए जो लास्ट में कुछ भी ना छोड़े, जैसे कि हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस अगर आप 1 kg बर्न करोगे तो लास्ट में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, कंप्लीटली बर्न हो जाएगा. लेकिन अगर आप 1 kg कोल को बर्न करते हो तो क्या कंप्लीट 1 kg बर्न हो जाएगा? नहीं, आपको लास्ट में 200 ग्राम्स और 100 ग्राम्स की ऐश, राख देखने को मिल सकती है, वो वेस्ट ही है. ठीक है ना. तो वो गुड फ्यूल में नहीं आती है. नेक्स्ट है चीप. सस्ता भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कॉस्टली हो काफी. ठीक है ना. इजीली अवेलेबल और बहुत जल्दी मिल जाए आपको. तो ये अगर सब फीचर किसी के पास हो तो उसको हम बोलते हैं गुड फ्यूल. ठीक है बच्चों. तो आज हमने क्या क्या कवर किया है? टुडे वी हैव कवर आवर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसमें हमने फाइंड आउट किया कि कैसे हमने मेजर करनी है किसी भी गुड फ्यूल की वैल्यू, कि उसके पास कितनी एनर्जी वो हमें दे सकता है और कितना केजी बर्न किया जाए. ठीक है.
और सेकंड में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट किए हैं कि एक गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और हमने हाइड्रोजन को भी देखा कि वो हमारा फ्यूचरिस्टिक फ्यूल बन सकता है।